سامعین حضرات، عزیزان ملت اسلامیہ، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں رہ کر سماعت کرنے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق والعظیم والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة۔ وقال حديث آخر: الحسين مني وأنا من الحسين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المجید القوی الکریم۔ شبیر باغ خلد کے ایک ایسے درخت ہیں، بڑے مبارکباد کے لائق آپ حضرات ہیں کہ آج کی اس رات تو کسی اور کے نام پر نہیں بلکہ نواز رسول کی محبت میں آپ حضرات ہیں۔ وہ نواسی رسول جنہوں نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، گھر چھوڑا، در چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، ان کے لیے ہم اور آپ کے لیے چھوڑا۔ انہی کی محبت میں آپ حضرات ذکر یاد حسین کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا حسین ہمارے بیٹھنے کو قبول عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ شہدائے کرب و بلا کے فیوز و برکات سے ہم تمام لوگوں کو پروردگار عالم مالا مال عطا فرمائے۔ چاہتے آپ بھی جا کر کے گھر پہ آرام کر سکتے تھے، لیکن اس طرح نوم پہ اگر آپ کو موت چلی آتی اس حالت میں، یقین جانیے کس طریقے سے موت ہوتی وہ انسان نہیں جان سکتا، لیکن میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ابھی جہاں آج جگہ بیٹھے ہیں، اگر اس حالت میں یا اس کے بعد اگر آپ کو بستر میں سونے کے بعد نیند آ جائے تو یقین جانے ایمان کی حالت میں موت ہے۔ اور پروردگار عالم ہم سبھی حضرات کی حاضری کو قبول عطا فرمائے۔ شبیر باغ خلد کے ایک ایسے درخت ہیں، شبیر باغ خلد کے ایک ایسے درخت ہیں جن کی ہوا سے سارے مسلمان مست ہیں۔ شبیر باغ خلد کے ایک ایسے درخت ہیں جن کی ہوا سے سارے مسلمان مست ہیں، اور تشنا لبوں نے ہونٹ نہ رکھے فرات پر، تشنا لبوں نے ہونٹ نہ رکھے فرات پر، تاریخ میں پانی کیے پہلی شکست ہے، تاریخ میں پانی کیے پہلی شکست ہے، اور سجدے میں سر، گلے پہ خنجر اور دین کی پیاس، سجدے میں سر، گلے پہ خنجر اور دین کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کی۔ سجدے میں سر، گلے پہ خنجر اور دین کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، کون ہے اس کا چرچا کرنے والا، کون ہے اس کا نام لینے والا؟ لیکن حسین ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ ہر غلام حسین اپنے بچے کا نام حسین رکھا کرتا ہے۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین آج بھی گھر گھر دکھائی دیتے ہیں، حسین آج بھی گھر گھر دکھائی دیتے ہیں۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ بہت وقت ہو چکا اور پھر سال بھر کے بعد یہ موقع ہمیں رات کو ملے، پروردگار عالم کا شکر مناتے ہوئے تھوڑی دیر آپ حضرات بیٹھے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بول سکتا ہوں، فیضان کرب و بلا ہو 1.5 گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ آپ کے مزاج کے ساتھ دیکھتے ہوئے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر امام القبلتین جد الحسن والحسین سرور مدینہ سرور راحت قلب و سینہ روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ نور میں محبت کے ساتھ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد طب القلوب دعائها وعافیت الابدان شفائها ونور الابصار ضیائها وآلہ واصحابہ دائما ابدا۔ شاعر اسلام طارق بھائی کی طرح میری آواز بھی نہیں، ریاض صاحب کی طرح بھی خوبصورت آواز نہیں، نقیب جلسہ کی طرح بھی آواز نہیں، لیکن 2-3 اشعار میں بھی چاہتا ہوں کہ ترنم ارے واہ 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 واہ، بہت اچھے سنیں گے؟ شعر پہ نگاہ رکھیں۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، ارے واہ 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 واہ، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، 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 مولا علی کی جان ہے، خون رسول مولا علی کی آپ بڑا اچھا شعر محبت کے ساتھ استقبال کیجئے، نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر۔ حضرات اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، امام حسین کے نام، امام حسن کے نام، بہت اچھا شعر ہے، محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی مسلم صاحب قبلہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے۔ اور جن کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات جو کچھ بھی ہے، اگر حسین پاک سے محبت نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ لہذا شاعر نے لکھا ہے، شعر سماعت فرمائیں کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان
आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। और ये शायर ने लिखा है कि जिनके लिए यजीद ने जुल्म किए बहुत जिनके लिए यजीद ने जुल्म किए बहुत कि वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। तुरते पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आयत करीमा का तर्जमा आप इमाम साहब से भी सुनते हैं, उलमाए किराम से भी सुनते हैं। इस आयत करीमा का माना ही यही हुआ कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं तुम उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, उन्हें कब्र में रिज़्क़ भी दिया जाता है। हज़रात मोहतरम, लिहाजा कुरान पाक की आयत करीमा बता रही है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते पर कत्ल किए जाएं, जो अल्लाह के दीन के लिए कत्ल किए जाएं, जो अल्लाह की रज़ा के लिए कत्ल किए जाएं, तुम उन्हें मुर्दा ना कहो क्योंकि वो अल्लाह के नजदीक जो है जिंदा है और उन्हें जो है कब्र में रिज़्क़ दिए जाते हैं। शुहदाए करबला भी कत्ल कर दिए गए, इमाम हुसैन भी कत्ल कर दिए गए, उनके बेटे भी कत्ल कर दिए गए, उनके पोते भी कत्ल कर दिए गए, उनके भाई भी कत्ल कर दिए गए। कब कत्ल किए गए? करबला का वाकया कब पेश आया? हज़रात मोहतरम, आज से जो है हजारों साल पहले करबला का वाकया पेश आया। करबला की सरजमीन पे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हमनवाओं के साथ, अपने काफिले वालों के साथ जो है करबला की सरजमीन पे गए और अपने जो है नफ्स के ख्वाहिश के लिए नहीं, अपने जो है नफ्स के पैरवी करने के लिए नहीं, बल्कि रब को राजी करने के लिए अपने आप को भी जो है शहीद कर दिया, अपने बाल बच्चों को भी शहीद कर दिया, अपने भाई को भी शहीद कर दिया। क्यों शहीद कर दिया? हज़रात मोहतरम, वो शहादत जो हज़रत इमाम हुसैन ने पेश किया करबला के सरजमीन पे, ये अचानक वाक़े वाला आने वाला वाक़या नहीं है। आज लोग कहते हैं करबला के सरजमीन पे इमाम हुसैन के मानने वाले लोग 72 लोग थे, यही वजह है। और यजीदी लोगों में यजीदी लश्करों की तादाद 22,000 थे, लिहाजा इमाम हुसैन की तादाद कम थी। इस वजह से हुसैन को जो है हुसैन के ऊपर जुल्म किया गया, इस वजह से हुसैन को कत्ल कर दिया गया, इस वजह से हुसैन के घर वालों को कत्ल कर दिया गया। प्यारे, मैं बताना चाहता, हुसैन जो है तादाद के एतबार से ज़ाहिरन आपकी निगाह में कम होंगे, लेकिन जब इमाम हुसैन के जो है खेमे से निकलने वाला, जब जो है एक नौजवान 18 साल का निकलता है, एक नौजवान 19 साल का निकलता है, यहाँ तक कि जब जो है 6 महीने का दूध पीता हुआ बच्चा जब मैदान करबला में निकलता है तो यकीनन यजीदी खेमे में एक जो है एक लर्ज़ा बरादाम जो है तारी हो जाता है, एक जो है शोरो खोल तारी हो जाता है। खबरदार, हुसैन के बच्चे के साथ तन्हा तन्हा मुकाबले करने की कोशिश मत करना। अगर तन्हा तन्हा अगर करने की कोशिश करोगे तो 22,000 का लश्कर का
کا یہ خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ چیزیں کہ حسین جو ہے اپنے نفس کی پیروی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ جو درب و بلا کی سرزمین پہ جامع شہادت دینے کے لیے آئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں، دین متین کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں، قرآن کی جو ہے حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور حسین پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کرب و بلا کے سرزمین پہ یہ صبر کیسے آیا، میں آپ کو بتاتا کہ چلو امام حسین وہ کون سی ذات ہے، پہلے حسین کی ذات کو سمجھیں، حسین کی ذات کو سمجھنے سے پہلے ان کے جو ہے باپ کے ذات کو سمجھیں، ان کے جو ہے ماں کے ذات کو سمجھیں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حسین کا مقام کیا ہے، حسن کا مقام کیا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام حضرت علی ہے، آپ جانتے ہیں ان کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ ہے، لیکن میں بتاتا کہ چلو آپ کا حضرت جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے والد محترم ابھی اس خاندان کیتی پہ آئے نہیں، علی اپنے ماں کے شکم کے اندر موجود ہے، علی کے ماں کا نام جو ہے فاطمہ بنت اسد ہے، علی کے ماں کا نام جو ہے فاطمہ، وہ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے اسی بیچ میں جو ہے درد دہ کا احساس ہوتا ہے، علی ماں کے شکم کے اندر ہے، ان کی ماں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، درد ہونے لگا ان کی ماں کو، درد ہونے لگا، اپنے شوہر سے کہا میرے شوہر نامدار لگتا ہے ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے، لگتا ہے بچے کے تولد کی گھڑی جو ہے قریب آ چکی ہے، لہٰذا یہاں کوئی چھپنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، درد بڑھتا جا رہا ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، اتنا جب کہنا تھا ان کے شوہر نامدار نے کہا کہ اے میری شریک حیات سنو، اگر تجھے درد کا احساس ہو رہا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خانہ کعبہ کے دیوار سے تم جو ہے چمٹ جاؤ، خانہ کعبہ کی دیوار سے تم جو ہے لگ جاؤ، خانہ کعبہ کے دیوار سے سٹ جاتی ہے حضرت علی کی ماں، علی ابھی ماں کے شکم کے اندر موجود ہے، خانہ کعبہ کے دیوار میں جیسے ہی سٹنا ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ جاتی ہے، شیک ہو جاتی ہے، اور ان کی والدہ محترمہ خانہ کعبہ کے اندر چلی جاتی ہے، خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی داخل ہو گئی، اندر داخل ہونا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی پیدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضرت علی پیدا ہوتے ہوئے نظر آئے، حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، ماں نے دیکھا بچہ بڑا خوبصورت ہے، ماں نے دیکھا کہ آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، ماں نے دیکھا پاؤں بڑا خوبصورت ہے، چہرہ بڑا جو ہے خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، لیکن ماں نے کیا دیکھا کہ بچہ تو پیدا ہوا، خانہ کعبہ کے اندر ہے، لیکن اس کے ہاتھ بھی حرکت کر رہے ہیں، زبان بھی ہل رہی ہے، پیر بھی ہل رہے ہیں، یہاں تک کہ سارے اعضاء تو کام کر رہے ہیں، لیکن آنکھ کو ابھی اس نے نہیں کھولا ہے، آنکھ کو ابھی اس نے نہیں کھولا، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کی ماں سوچنے لگی پروردگار عالم تو نے جو مجھے یہ بیٹا دیا، یہ بیٹا تیرے گھر کے اندر جو ہے میں نے جو ہے جنا، گھر کے تیرے گھر کے اندر یہ میرا بیٹا جو ہے پیدا ہوا، لیکن مولا اس کا ہاتھ بھی تو نے صحیح دیا، اس کے زبان بھی تو نے صحیح دی، اس کے جو ہے اعضائے جسمانیہ تو نے صحیح عطا فرمایا، لیکن وجہ کیا ہے مولا کہ ابھی اس نے آنکھ نہیں کھولا ہے۔ آج ہمارے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، معاشرے میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، آج اگر بچہ پیدا ہوتے ہی اگر رونا بند کر دے، اگر بچہ نہ روئے تو گھر والے رونے لگتے ہیں، اگر بچہ جو ہے حرکت کرنا بند کر دے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، چلو ڈاکٹروں کا سہارا لیا جائے۔ حضرت محترم یہی جو ہے کیفیت تھی وہاں پہ، حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولا، ان کی ماں اپنے گود میں لیتی ہے اپنے بیٹے کو، اور لینے کے بعد نہیں ڈاکٹر کے یہاں نہیں جاتی ہے، طبیب کے یہاں نہیں جاتی ہے، حاضر کے یہاں نہیں جاتی ہے، بلکہ ان کی ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، اور لینے کے بعد دوڑے دوڑے حضرے رسول پہ چلی جاتی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم چلوا کر ہے، اسی بیچ میں دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد ایک نومولود بچہ اپنے گود میں لے کر کے آ رہی ہے، پیغمبر نے دیکھا کہ یہ جو ہے نومولود بچہ لے کر کے آ رہی ہے، علی کی ماں قریب گئی، جانے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول یہ جو ہے میرا یہ بچہ تو پیدا ہوا، خانہ کعبہ کے اندر ہوا، لیکن اس کے ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، اس کے پیر بھی ہل رہے ہیں، اس کی زبان بھی ہل رہی ہے، لیکن اس کی آنکھیں بند ہیں، یہ دیکھ نہیں رہا ہے، وجہ کیا ہے؟
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ بات ہے، وجہ کیا ہے یہ معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جیسے ہی حضرت علی کی والدہ نے کہا ہے، نبی نے کہا لا تیرے بیٹے کو، لا تیرے بیٹے کو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علی کو اپنے گود میں لے لیا۔ گود میں لینے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے نگاہ نبوت ڈالا علی کے چہرے پر۔ نگاہ نبوت کا ڈالنا تھا کہ حضرت علی جو ہے خانہ کعبہ میں آنکھ کو نہ کھولے، ماں کے گود میں آنکھ کو نہ کھولے، جیسے ہی نبی کے گود میں چلے آئے اور نبی کے نگاہ علی کے چہرے پر پڑ گئی تو علی نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دی۔ علی نے آنکھیں کھولا، کسی اور چیز کو نہ دیکھا بلکہ حضرت علی نے دیکھا ہے تو چہرے بندوہا کو دیکھا ہے، نبی کے چہرے کو دیکھا ہے۔ حضرت محترم وہی علی جب بڑے ہو گئے، بڑے ہو جانے کے بعد حضرت علی سے پوچھا تھا کسی سوال کرنے والے نے، اے علی تو تو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا تھا، خانہ کعبہ کے زیارت کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے لوگ اپنے ملک سے چلے آتے ہیں تاکہ میں کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، کعبہ کا میں طواف کر سکوں۔ اے علی تو نے خانہ کعبہ میں جنم لیا لیکن اس کے بعد تو نے اپنی آنکھوں کو کیوں نہیں کھولا؟ علی نے کہا اے سوال کرنے والے سنو سنو، یقیناً میری ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے لیکن میں نے خانہ کعبہ کے اندر اپنی آنکھ کو نہ کھولا، میں نے جو ہے اپنی آنکھ کو نہ کھولا، میں نے یہ سوچا کہ میری آنکھ جب بھی کھلے، میری آنکھ جب بھی دیکھے تو خانہ کعبہ کو نہ دیکھے بلکہ اگر میری آنکھ کسی چیز کو دیکھے تو کعبے کے کعبہ کو پہلے دیکھے، نبیوں کے نبی کو پہلے دیکھے، جس نبی کے صدقے رب نے کعبہ کو بھی بنایا ہے، جس نبی کے صدقے رب نے چاند اور تارے کو بھی بنایا ہے، لہذا علی نے نہ آسمان کے تارے کو دیکھا، نہ جو ہے سورج کو دیکھا، نہ دنیا کو دیکھا، اگر دیکھنا چاہا علی نے تو سب سے پہلے چہرے پر تو ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، شان حضرت علی۔ حضرت علی پیدا ہوئے کعبے کے اندر، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئی؟ رسول اللہ کے گھر۔ تو عربی میں گھر کو بیت کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے خانہ کعبہ کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو علی پیدا ہوئے بیت اللہ میں اور فاطمہ پیدا ہوئی بیت رسول اللہ میں، اور جب دونوں بیت کا آپس میں ملن ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے سے وصل ہوتا ہے تو وہیں سے اہل بیت وجود میں آتا ہے، وہیں سے اہل بیت وجود میں آتا ہے، نکاح بھی ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد جو ہے وقت گزرتا رہا، حضرت امام حسین تشریف لائے، بعد حضرت امام حسن تشریف لائے، بعد حضرت امام حسین تشریف لائے، وقت گزرتا رہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں کا نام رکھا، ایک کا نام حسن رکھا اور دوسرے کا نام حسین، اور یہ دونوں نام یہ دنیاوی نام نہیں بلکہ دونوں کے دنیا میں آنے سے پہلے پروردگار عالم نے دونوں ناموں کو جنت میں رکھا تھا اور مخفی دونوں، لہذا حسن اور حسین کا یہ دونوں نام یہ دونوں جنتی نام ہیں۔ تبھی میرے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ حسن اور حسین اسمان الجنہ، حسن اور حسین کے دونوں جنتی نام۔ اب کربلا کا وہ واقعہ سامنے آیا، اس سے پہلے جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارکہ ہو گئی، پیدائش مبارکہ ہونے کے بعد حضرت جبریل امین رسول پاک کی بارگاہ میں آتے رہے اور یہ خبر دیتے رہے یا رسول اللہ آپ کا نواسہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، آپ کے کلمہ پڑھنے والے لوگ آپ کے نواسے کو شہید کریں گے۔ اس طریقے سے متعدد حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، متعدد حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے نواسوں سے محبت فرمایا کرتے، ایسی محبت فرماتے کہ حسن کو بھی چوما کرتے، حسین کو بھی چوما کرتے، حسن کو بھی سکھا کرتے، حسین کو بھی سکھا کرتے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے نواسوں سے اس قدر محبت فرماتے، اس قدر محبت فرماتے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، حسن اور حسین کو کبھی تم رونے مت دینا، حسن اور حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور نبی جب نواسے کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، ایک دفعہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تختی جسے سلیٹ کہا جاتا ہے، پہلے کے زمانے میں
लोग लिखा करते थे उसमें पेंसिल के जरिए से। तो इमाम हसन ने भी लिखा और इमाम हुसैन ने भी लिखा। आप समझें कि इमाम हसन और हुसैन का मकाम है। इमाम हसन और हुसैन का मकाम क्या है? दोनों ने एक तख्ती लिखी। तख्ती लिखने के बाद ये दोनों चले आए हजरत अली करमुल्लाह वजह करीम की बारगाह में, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में, माँ की बारगाह में आए। आमतौर पर अगर बच्चे घर में कोई अच्छा काम करते हैं तो माँ के करीब जाते हैं और माँ से ये बच्चे कहते हैं, माँ बताओ कि ये मेरा काम कैसा है, ये मेरा काम कैसा है। अगर घर में दो बच्चे हो तो दोनों बच्चे कहते हैं कि बताओ कि ये मेरा काम सही है कि इसका काम सही है। उसी तरीके से दोनों बच्चों ने एक तख्ती लिखी और लिखने के बाद वो दोनों आ गए माँ फातिमा दूते रसूल की बारगाह में। कहा, वालिदा मोहतरमा, हम लोगों ने ये तहरीर लिखा है, हम लोगों ने ये तख्ती लिखी है, ये राइटिंग लिखी है, लिहाजा आप बताएं कि हसन की तहरीर अच्छी है कि हुसैन की तहरीर अच्छी है, हसन की तहरीर अच्छी है कि हुसैन की तहरीर अच्छी है। इतना जब कहा, माँ ने सोचा कि अगर मैं हसन की तहरीर को अच्छा कर देता हूँ तो हुसैन को तकलीफ होगी, और अगर हुसैन की तहरीर को मैं अच्छा कर देता हूँ तो हसन को तकलीफ होगी। माँ ने कहा कि बेटे, इसका फैसला मेरी बारगाह से आपको नहीं मिलेगा, बल्कि इसका फैसला लेने के लिए आपको फातिह खैबर अली की बारगाह में जाना होगा। दामाद मुस्तफा फातिह खैबर अली की बारगाह में दोनों बेटे आए। आने के बाद कहा, अब्बा हुजूर, आप बताइए कि जो है किसने अच्छा लिखा है? हसन के बड़े भाई ने अच्छा लिखा या जो है हुसैन ने अच्छा लिखा है? कि आपको ये फैसला करना है। अली ने कहा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? दोनों बेटों ने कहा कि वालिदा के यहाँ से आ रहे हैं। कहा कि क्या तेरी माँ ने ये नहीं बताया, फैसला नहीं दिया कि किसने अच्छा लिखा है, किसकी तहरीर अच्छी है? बेटों ने कहा, अब्बा हुजूर, अगर वहाँ फैसला मिल गया होता तो आपकी बारगाह में हम लोग कैसे आते? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़ी देर के लिए ठहर गए और ठहरने के बाद कहा, ऐ मेरे बेटे, जिसका फैसला तेरी माँ न कर सके उसका फैसला करने की हिम्मत तेरे बाप के अंदर भी नहीं है। लिहाजा इसका फैसला अगर तुझे लेना है तो नबी की बारगाह में जाना होगा। दोनों बच्चे दौड़े दौड़े नबी की बारगाह में चले आए, नबी की बारगाह में चले आए। नाना जान ने देखा कि दोनों नवाजों के हाथ में एक तख्ती है, एक तख्ती है। आते हुए देखा नवाजों को, कहा कि बेटे क्या बात है, बड़ा परेशान नजर आ रहे हो। दोनों बच्चे करीब आए। आने के बाद कहा, नाना जान, आपको ये फैसला देना है कि मैंने अच्छा लिखा है या इसने अच्छा लिखा है, हसन ने अच्छा लिखा है या हुसैन ने अच्छा लिखा है। दोनों भाइयों ने जब अपनी बात अदालत में रखी है, अदालत रसूलुल्लाह में रखी है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बेटे आखिर तुम कहाँ से आ रहे हो? कहा कि माँ की बारगाह में गया था, वहाँ इसका फैसला ना मिला। बाप की बारगाह में भी गया था, वहाँ भी इसका फैसला ना मिला। दोनों ने आपकी बारगाह में भेजा है। लिहाजा अब आपको ये बताना है, आपको ये फैसला करना है कि हसन की तहरीर अच्छी है या हुसैन की तहरीर अच्छी है, दोनों में से किसकी तहरीर अच्छी है। इतना जब कहना था, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने जो है बड़े बड़े फैसले किए सहाबा के दरमियान, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी बारगाह में अदल एक ऐसा कायम हुआ है कि अपना तो अपना बेगाना भी जब नबी की बारगाह में आया है तो अदल का एक ऐसा पैगाम लेकर के गया है, वो कहने पर मजबूर हो गया है कि ऐसा इंसाफ करने वाला कायनात आलम में हमने कभी नहीं देखा है। हज़रत मोहतरम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब ये दोनों बच्चे, दोनों नवासे आ गए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सर मुबारक को झुकाया और झुकाने के बाद कहा, ऐ मेरे बेटे, इसका फैसला तेरी माँ फातिमा ना दे सकी, इसका फैसला जो है तेरे बाप अली ना दिए, उसका फैसला मैं भी नहीं दे सकता, बल्कि इसका फैसला तुझे रब्बे ज़ुल जलाल की जानिब से मिलेगा, रब्बे ज़ुल जलाल की जानिब से मिलेगा। इतना जब नबी का फरमाना था, परवरदिगार आलम की बारगाह से हुक्म आता है, या रसूल अल्लाह, मैंने जिब्रील के जरिए से एक सेब भेज दिया है। अब ये सेब जिसके तख्ती पर गिरेगा उसी की तहरीर अच्छी होगी। हज़रत जिब्रील यमीन एक सेब लेकर के चले आए। लाने के बाद दोनों की तख्तियां दो जानिब है, हसन की भी तख्ती है, हुसैन की भी तख्ती है। जो हसन ने लिखा वो भी है, जो हुसैन ने लिखा वो भी है। दोनों तख्तियां जो है दो जानिब जो है पड़ी हुई है। उसी बीच में हज़रत जिब्रील यमीन ने सेब को जो है ऊपर से गिराया। सेब जैसे ही नीचे की जानिब आने लगा, हुक्म रब्बी होता है, रब के हुक्म से वो सेब एक था लेकिन दो हिस्सों में कट जाता है। आधा हसन की तख्ती पे गिरता
है आधा हुसैन की तख्ती पर आधा हसन की तख्ती पर गिरता है, आधा हुसैन की तख्ती पर गिरता है। लिहाजा इस बात से हमें ये पता चला कि जहाँ परवरदिगारे आलम को भी वह परवरदिगारे आलम को भी ये मंजूर ना हुआ कि अगर मैं एक सेब को हसन की तख्ती पर अगर गिरा दूं तो हुसैन को तकलीफ होगी, हुसैन की तख्ती पर गिरा दूं तो हसन को तकलीफ होगी। लिहाजा परवरदिगारे आलम है दोनों जो है नबी के नवासों में से किसी एक को भी नाराज करना नहीं चाहता। क्यों नाराज नहीं करना चाहता? रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम भी नाराज नहीं करना चाहते। ये फैसला दे करके कि किसकी तहरीर अच्छी है, लिहाजा प्यारे उसकी वजह एक ये समझ में आती है, यहाँ मेरे नबी ने ये फैसला जो है किया, ऐसा फैसला हजरत जिब्रील के जरिए से रब्बे जुल जलाल ने करवाया कि दोनों जो है खुशी खुशी नजर, दोनों खुश खुरम नजर आने लगे, दोनों जो है बाग बाग हो गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये तरबियत औलाद है, ये जो है तरबियत औलाद है। और इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हों से जो है रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम कैसी मोहब्बत फरमाया करते थे, किस तरह से मोहब्बत फरमाया करते थे और क्यों मोहब्बत फरमाया करते थे। हजरत वही जिब्रील यमीन आते रहे और आने के बाद ये खबर देते रहे, या रसूल अल्लाह आपका ये नवासा करबला की सरजमीन पे शहीद होगा मजहब इस्लाम के पास पाने के लिए, मजहब इस्लाम की हिफाजत के लिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया यही वजह है कि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने नवासों से मोहब्बत फरमाया करते थे, अपने नवासों से मोहब्बत फरमाया करते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अमीर मुआविया के बाद 6 महीना तक तख्ते खिलाफत पर बैठे, तख्ते खिलाफत पर बैठे और खिलाफत को संभालते रहे। लेकिन हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद जो है हजरत मोहतरम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 महीने के बाद जो है वो खिलाफत से दस्तबरदारी हो गए और अमीर मुआविया सहाबी रसूल के हाथ में ये खिलाफत को दे दिया, खिलाफत को दे दिया। उसके बाद अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद यजीद तख्ते नशीं हुआ, यजीद जो है तख्ते नशीं हुआ, यजीद तख्त पर बैठा। और यजीद कैसा था? यजीद यकीनन एक सहाबी रसूल का बेटा तो था, लेकिन वो यजीद बाप की सोहबत में जिंदगी नहीं गुजारता था, वो बाप के किरदार को उसने नहीं पाया, बाप के सोहबत को भी उसने नहीं पाया, बल्कि वो अपने ननिहाल में रहा करता था। और ननिहाल में रहने के बाद क्योंकि यजीद की माँ ईसाई से ताल्लुक रखते थे, उसके माँ ईसाई थे, लिहाजा यजीद जो है हज़रत मोहतरम ननिहाल में रहा करता था। और ननिहाल में रहने के बाद उसकी सोहबत जो है खैरों के साथ होने लगी, उसकी सोहबत जो है लफंगों के साथ होने लगी, उसके साथ जो है शराबियों के साथ होने लगे, उसके साथ जो है फिस्को फजूल लोगों के साथ होने लगे। लेकिन जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, उसके बाद यजीद जब तख्त पर बैठा, यजीद जब बादशाह बना, तो बादशाह बनने के बाद सबसे पहले मदीना शरीफ में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन मौजूद थे, उसने जो है कासिम के जरिए ये पैगाम भिजवाया कि जो है मदीना में हुसैन इब्ने अली है, उनसे जो है मेरी बैत करने के लिए कहो, मदीना के जो है सहाबाए किराम से जो है बैत करने के लिए कहो, मदीना के लोगों से बैत करने के लिए कहो। जैसे ही यजीद ने ये जो है तख्त पर बैठने के बाद ये पैगाम जब जो है फैला कर जहार जाने, कासिम जो है वो खत लेकर के आया मदीना शरीफ। मदीना का गवर्नर उस वक्त वलीद इब्ने अक़बा था। जैसे ही आया वलीद इब्ने अक़बा गवर्नर के पास यजीद का खत आया, उस खत में लिखा था कि इमाम हुसैन की यजीद की जो है इमाम हुसैन की बैत ली जाए। यजीद का ये हुक्म हुआ है। वलीद इब्ने अक़बा ने इमाम हुसैन को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि हुसैन सुनो, यजीद तख्ते नशीं हुआ है, अमीर मुआविया के बाद यजीद जो है बादशाह वक्त पर बना हुआ है, लिहाजा उसने बैत करने के लिए कहा है, बैत करने के लिए हुक्म दे दिया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये समझ गए कि यजीद के हाथ पर मैं हाथ कैसे दे सकता हूँ, जो यजीद के हाथ पर मैं हाथ कैसे दे सकता हूँ। हजरत इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद का जो है किरदार ठीक नहीं है, यजीद का गुफ्तार ठीक नहीं है, यजीद का रहन सहन ठीक नहीं है, यजीद जो है खुलेआम जो है फिस्क फजूल किया करता है, यजीद खुलेआम जो है शराब पिया करता है। लिहाजा नवासे रसूलुल्लाह ने सोचा कि मेरी माँ ने मुझे खून को दूध बनाकर किस वजह से नहीं पिलाया था कि मैं एक बदकार के हाथ में हाथ दे दो, एक शराबी के हाथ में हाथ दे दो। मेरे नाना जान ने मुझे कंधे पर बैठा करके इस वजह से मुझे नहीं टहलाया था कि ताकि जो है मैं यजीद के हाथ में हाथ दे दो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं ये कभी हो नहीं सकता है, ये पाक हाथ एक नापाक इंसान के हाथ में जा नहीं सकता, ये नापाक इंसान के हाथ में जा नहीं सकता। हुसैन अपने सर को दे सकता है लेकिन इस हाथ को नहीं दे सकता।
इसाक को चुमा है, किसे फातिमा बिन्ते रसूल ने चुमा है, किसे हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने चुमा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुख्तसर में मैं बयान करना चाहता हूँ, वरना करबला का दास्तान बयान करने के लिए हजरत मोहतरम महीनों जरूरत है, 10 दिन जो है कम से कम जो है जरूरत है। मुख्तसर में मैं बताना ये चाहता, हजरत इमाम हुसैन ने जब इनकार कर दिया, ऐसी सूरत में मदीना शरीफ में थे हजरत इमाम हुसैन अपने जो है घर वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद कहा, ऐ मेरे मानने वालों, अमीर मुआविया सहाबी रसूल के बाद उनका बेटा यजीद जो है तख्ते नशीन हुआ है, तख्ते खिलाफत पर बैठा हुआ है और उसने मुझे बैत करने के लिए मजबूर किया है, लिहाजा बताओ कि मैं बैत उसके हाथ पे कैसे कर सकता हूँ। नवासे रसूलुल्लाह हूँ मैं, शरीयत मुतहरा पे चलने वाला हूँ और उसके जो है किरदारों अफकारों जो है नजरिया शरीयत मुस्तफा से हट करके उसके हुआ करते हैं। हजरत मोहतरम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने घर वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद कहा कि चलो यहाँ मदीना शरीफ से हम निकल जाते हैं, अगर हम यजीद की बैत नहीं करते हैं हो सकता है यजीद मदीना पर चढ़ाई कर देगा, मदीना पर हमले कर देगा और हुसैन की वजह से मदीना की जो है मिट्टी अगर पलीद हो जाए, मदीना पे अगर जो है चढ़ाई कर दे, यहाँ के अगर जो है बेकसूर नौजवान मारे जाए, यहाँ के अगर जो है बेकसूर लोग अगर मारे जाए तो मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात के वक्त में साजो सामान तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद जो है अपने घर वालों को कहते हैं कि तुम सारी तैयारियां कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इमाम हुसैन रसूल के रोजे पर हाजिरी देते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक पे हाजिरी देते हैं। जैसे ही इमाम हुसैन नबी के रोजे पर हाजिरी दिए, हाजिरी करने के बाद अपने सर को रखा सजदे में और क्या दुआ करने लगे, ऐ मेरे नाना जान, आपकी सोहबत मैंने पूरी जिंदगी पाई है, ऐ नाना जान मेरी वजह से आपने मिंबर को छोड़ा है, ऐ मेरे नाना जान आपकी वजह से, मेरी वजह से आपने जो है हर जो है मैंने जो भी मांगा आपने उसे पूरी किया है, लेकिन ऐ नाना जान अब मैं आपका जो है शहर मदीना छोड़ रहा हूँ, आपका मैं गुरबत अनवर छोड़ रहा हूँ, आपका मैं रोजे की मुबारका छोड़ रहा हूँ, ये रोजे की चाली छोड़ रहा हूँ, अब मैं मदीना से निकलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं निकलता हूँ तो यजीद यहाँ पर आकर के हमले कर देगा, जिसकी वजह से जो है बेकसूर लोग मारे जाएंगे। हजरत इमाम हुसैन रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो है ये दुआएं करते रहे, रोते रहे, अंदर से जो है आवाज आने लगे कि मेरे बेटे मैंने तुझे इसी वजह से तो कंधे पर बैठाया था कि एक वक्त जब आएगा मजहब इस्लाम के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो तुम उसके उंगली के समेत जो है उसके जिस्म को भी तहे तहे कर देना, लेकिन जो है उसके बावजूद है तुम जो है उसके नजदीक अपने सरे तस्लीम खम मत करना, तुम उसके किरदार के मुताबिक मत चलना, तुम उसके कहने के मुताबिक मत चलना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे से हजरत इमाम हुसैन निकलते हैं और निकलने के बाद अपनी माँ फातिमा बिन्ते रसूल के मज़ार पे हाजिरी देते हैं। नबी की माँ, नबी की बेटी फातिमा के मज़ार पे जैसे ही हाजिरी दिया हजरत इमाम हुसैन ने, इमाम हुसैन वहाँ यही कहे होंगे, ऐ मेरी माँ आपने मुझे 9 महीना अपने शिकम के अंदर रखा है, आपने मुझे अपने खून को दूध बना करके पिलाया है, लेकिन ऐ माँ जब मैं बेचैन हुआ करता था मैं आपकी बारगाह में आ जाया करता था, मुझे आपके मज़ार से सुकून मिल जाया करता था, लेकिन ऐ माँ अब मैं जो है आपकी मज़ार मुबारका से दूर जा रहा हूँ। यजीद जो है यजीदी ताकत ने मुझे ललकारा है, यजीद अपने शाही पर बैठा है, उसने मुझे बैत करने के लिए कहा है, लिहाजा हुसैन को मातू ने इस वजह से दूध नहीं पिलाया कि तेरा हुसैन जो है यजीद के हाथ पर हाथ दे दे, यजीद के जो है हाथ पर हाथ दे करके बैठ कर ले। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी माँ की बारगाह में भी अपनी बातें रखते हैं, उसके बाद अपने काफिले वालों को लेते हैं और लेने के बाद जो है मदीना शरीफ से निकलते हैं। जब इमाम हुसैन मदीना से निकला करते थे बार बार घूम घूम करके रोज़े रसूल को देखा करते थे। आज एक दीवाना अपनी आंखें बंद करता है और बंद करने के बाद यही कहता है, इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए किराम, नारे तकबीर, या हुसैन, नारे
अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ से निकले, मक्के की सरजमीन पे पहुंचे। जैसे ही मक्के की सरजमीन पे पहुंचे हजरत इमाम हुसैन कूफा से हुदूद आने लगे। मैं मुख्तसर में ये बताना चाहता, तारीख बताती है कि 150 हुदूद इमाम हुसैन की बारगाह में आए। कूफा के लोगों ने खत में लिखा, ऐ हुसैन आप हमारे यहाँ चले आइए, आप हमारे यहाँ चले आए, आपके बाप के मानने वाले हम लोग हैं, आपके बाप से अली से मोहब्बत करने वाले हम लोग हैं, लिहाजा हुसैन आप कूफा की सरजमीन पे चले आइए। आपके हाथ पर हाथ दे करके बैत करने के लिए सारे लोग तैयार हैं, आप पर जो है अपनी जान को कुर्बान करने के लिए सारे लोग तैयार हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ जब 150 हुदूद करीब आए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ से अब निकलने लगे। बड़े बड़े सहाबाए किराम ने रोकने की कोशिश की, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने रोकने की कोशिश की, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने रोकने की कोशिश की, दीगर जो है सहाबाए किराम ने जो है रोकने की कोशिश की इमाम हुसैन को। ऐ हुसैन आप कूफा मत जाइए, कूफा के लोग जो है वादा खिलाफी क्या करते हैं, अल कूफी ला यूफी, कूफे अपने वादे में जो है पक्के नहीं हुआ करते हैं। लेकिन कूफे की सरजमीन पे इमाम हुसैन को जाना था, हजरत जिब्रील के जरिए बार बार नबी की बारगाह हम ये खबर लाना था, या रसूल अल्लाह आपका नवासा करबला की सरजमीन पे शहीद होगा। बिलाखिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के की सरजमीन से एक मुख्तसर सा काफिला लेकर के निकलते हैं। कैसा काफिला, अगर हुसैन पाक अलैहिस्सलाम तो तस्लीम ये इरादा लेकर के जाते कि करबला में यजीद के लश्कर के बीच में हमारे बीच में जंग होगी, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक लश्कर का जब्बे कफीर लेकर के जाते। लेकिन वहां वो मामला नहीं था। कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन को इस वजह से बुलाया था कि उनके हाथ पर हाथ दे करके अपने जो है अली से मोहब्बत करने का ये सबूत पेश कर सके। यही वजह है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने काफिले को लेकर के निकलते हैं। उस काफिले में औरतें हैं, उस काफिले में बच्चे हैं, और ऐसा बच्चा जो दूध पीता बच्चा है। उस काफिले में जो है 70 साल के एक सहाबी रसूल है, हजरत मोहतरम वो काफिला मुख्तसर सा लेकर के हजरत अली हजरत इमाम हुसैन जो है मक्का शरीफ से निकले। चलते इमाम हुसैन जो है करबला के सरजमीन पे पहुंच गए। करबला के सरजमीन पे पहुंचे, उसी बीच में हूर भी आया, उनके जो है हूर भी आया। हूर ने भी जो है हजरत इमाम हुसैन से मुलाकात की, और हूर ने भी रोका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। लेकिन हजरत मोहतरम हूर को यह खबर नहीं थी कि यजीद का ऐसा हुक्म है। यजीद जो है यजीद इब्न ज़ियाद उसके मानने वाले इमाम हुसैन के साथ जो है वादा खिलाफी करेंगे, बल्कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से हूर को ये बताया गया था कि इमाम हुसैन के मानने वालों को तुम जो है करबला में घेर करके रखना। हजरत मोहतरम इमाम हुसैन करबला के सरजमीन पे पहुंच गए। हूर भी वहां पे मौजूद है। बिलाखिर वक्त गुजरता रहा यहाँ तक कि करबला की दूसरी तारीख, करबला की ये जो है महीने की दूसरी तारीख चली जाती है, तीसरी तारीख चली जाती है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं तारीख चली जाती है। ऐसी सूरत में जब फौज पर फौज जो है करबला पे जमा होने लगे, यजीद की जानिब से 22,000 का लश्कर तैयार हो गया। जब 22,000 का लश्कर तैयार हो गया, एक जानिब यजीद के मानने वाले खेमा लगाए हैं, दूसरी जानिब हुसैन के मानने वाले खेमा लगाए हुए हैं। ऐसी सूरत में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐ लोगों, आखिर बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लिहाजा तुम मुझे जो है अपने वतन वापस जाने की इजाजत दे दो, या तुम मुझे ये इजाजत दे दो कि मैं कहीं जा करके मैं जो है पनाहगुज़ी अख्तियार कर लूं, ताकि मैं जो है तुम्हारे बीच में फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। लेकिन हजरत मोहतरम यजीदियों ने सोचा कि अगर हुसैन को यहाँ से जाने दे दिया जाए तो एक जो है बड़ा लश्कर जो है कायम हो जाएगा, इराक से भी लश्कर जमा हो जाएंगे, सारे जो है मुल्क से लश्कर जमा हो जाएंगे। उस सूरत में इमाम हुसैन के साथ मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमे में 72 नफूस कुदसिया है, जिनमें ख़वातीन इस्लाम है, जिनमें जो है सौगवार जो है माए हैं, जिनमें जो है बच्चे हैं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन है। ऐसी सूरत में आखिरी दौर जब ये आता है, कोई जब काम नहीं आती है, ऐसी सूरत में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उन्होंने जो है मैदान करबला में जा करके एक पैगाम दिया, और ये जो है तंबीह करने की कोशिश की, ये जो है हुक्मनामा, ये तंबीह करने की कोशिश की, ऐ लोगों तुम जरा सा बताओ कि
उसको कत्ल करने के लिए आए हो, उसे कत्ल करने के लिए आए हो जो रसूल का नवासा है, उसे कत्ल करने के लिए आए हो जो है फातिमा का बेटा है, उसे कत्ल करने के लिए आए हो जो है अली का बेटा है। बताओ पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह का नवासा मेरे अलावा कोई मौजूद है? कोई नहीं है। लिहाजा ऐ यजीद के मानने वालों, ऐ इब्ने ज़ियाद के मानने वालों यजीदियों, जरा सा अभी भी तुम समझ जाओ। लेकिन हज़रत मोहतरम दौलत की लालच की बुनियाद पे इब्ने साद ने कहा या हुसैन अब ये तेरा जो है हर बार काम नहीं करेगा, ये तेरी बातें अब जो है यहाँ पे नहीं चलेगी। तुम्हें या तो यजीद के हाथ पर हाथ देना होगा, या तो तुझे यजीद की हुकूमत को तस्लीम करना होगा, या तो तुझे यजीद की जो है इत्तिबा करनी होगी, या तो फिर तुझे जो है हमारे साथ जंग करना होगा। दोनों बातों में से एक बात को इख्तियार कर लो। जब इमाम हुसैन ने जब मैदान करबला में ये बातें रखी, यजीदियों पे ये बातों का जब कोई असर नहीं हुआ, इमाम हुसैन चले आए अपने खेमे में, और खेमे में आने के बाद जो है शाम का वक्त था। यजीदियों से कहा कि ऐ यजीदियों सुनो, अगर तुम मेरे साथ जंग ही करना चाहते हो तो तुम एक दिन का मुझे मोहलत दे दो, एक जो है दिन का मुझे जो है वक्त दे दो। हजरत इमाम हुसैन को एक दिन का वक्त मिल जाता है। खेमे के अंदर चले आए, अपने मानने वालों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद रात का वक्त था तो चिराग चल रहा था, और चिराग को बुझा दिया हजरत इमाम हुसैन ने, और बुझाने के बाद कहा ऐ मेरे मानने वालों, यजीदियों को मेरे साथ दुश्मनी है, यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, यजीदी मुझे कत्ल करना चाहते हैं, लिहाजा तुम्हें मैं आजाद करता हूँ। ये मैंने चिराग बुझा दिया है, ये अंधेरे का वक्त है, जो चाहे जहाँ चाहे तुम इस खेमे से निकल सकते हो, खेमे से तुम जा सकते हो। मेरी वजह से तुम्हारी जाने ना मारी जाए, मेरी वजह से तुम ना कत्ल किए जाओ। जब इतना कहना था, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये फरमाया, सारे लोगों ने एक जुबान होकर के कहा ऐ नवासा ए रसूलल्लाह, ऐ हुसैन आपकी वजह से मैंने मदीना इस वजह से नहीं छोड़ा है, सरकार का रोजा इस वजह से नहीं छोड़ा, खाने कामा इस वजह से नहीं छोड़ा, मक्का इस वजह से नहीं छोड़ा कि आप आए मौके पे आने के बाद आपके साथ हम धोखा कर दें, आपके साथ हम जो है बेवफाई कर दें, बल्कि आखिरी दम तक आपके साथ रह करके हम यजीद का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, दीन मकीन की जो है हिफाजत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मिल्लत इस्लामिया जबकि सारे लोगों ने ये कहा, ऐसी सूरत में इमाम हुसैन ने फरमाया अब रात का ये वक्त है, ऐसी सूरत में रात है, कुरान की तिलावत खूब करते रहो, इबादतें खूब करते रहो, तस्बीह खूब पढ़ते रहो, रब को राजी करने की कोशिश करते रहो। रात भर इमाम हुसैन के खेमे में कुरान की तिलावत होती रही, तस्बीहों की आवाज आती रही। हजरत मोहतरम के हर करके फिर सुबह का वक्त चला आता है, वो सूरज जो है अपनी रोशनी को बिखेरता है, वो सूरज जो है निकलता है, अपने किरणों को जैसे ही निकलता है सुबह का वक्त हो जाता है। ऐसी सूरत में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो जो है लोगों को फिर वो पैगाम देना चाहा, लेकिन वो पैगाम लोगों पर कोई असर ना हुआ। मिला हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमे से एक के बाद दीगरे जो है 19 साल का नौजवान भी निकलता रहा, मजहब इस्लाम की हिफाजत के लिए जो है जाने शहादत पीता रहा। इमाम हुसैन में जाते रहे, हर एक के लाशा को उठा करके खेमे के अंदर लाते रहे, बेतरतीब हर एक के लाशा को जो है खेमे के अंदर ला करके लिटाते रहे। हजरत मोहतरम को जो है शहीदाने करबला में हजरत जो है मोहम्मद कासिम का भी जो है लाशा खेमे के अंदर लाए हुसैन, अली अकबर का भी लाशा लाए खेमे के अंदर हुसैन, हजरत अब्बास लंबरदार का भी लाशा लाए, हजरत जो है अब्बास लंबरदार का भी लाशा लेकर के आए हुसैन। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ प्यारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को परवरदिगार आलम ने क्या जो है सब्र अता फरमाया था। तन्हा हुसैन है, हर एक के आखिरी वक्त में मैदान करबला में हुसैन जाते हैं, तड़पते हुए लाशों को अपने सीने पे उठाते हैं, जख्म खुर्दा लाशों को अपने सीने पे उठाते हैं और ला करके खेमे के अंदर लाते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेमे के अंदर दौड़ाते रहे। उसी बीच में हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़े दौड़े आई। आने के बाद जो है एक छोटी सी बच्ची जो है छोटे से बच्चे हजरत अली असगर को लेकर के आए, जो दूध पीता बच्चा था करबला के मैदान में, 6 महीने का बच्चा था। बस मैं 10 मिनट में खत्म कर रहा हूँ अपने गुफ्तगू को। हजरत मोहतरम 6 महीने का दूध पीता बच्चा हजरत ज़ैनब लेकर के आए। आने के बाद कहा कि भाई जहाँ जो है करबला की सरजमीन है, यहाँ पे हर एक कोई पानी के लिए
لیے جو ہے तरس رہا ہے. نہر فرات پر 500 آدمی کا پہرا لگا دیا گیا ہے. لیکن اے بھائی جان یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے. پیاس کی وجہ سے اس کی زبان سوکھ رہی ہے, پیاس کی وجہ سے اس کی ہونٹ سوکھ رہی ہے. آپ چلے جائیے کربلا کی سرزمین پہ, چلے جائیے کربلا کی سرزمین پہ, اور جو ہے یزیدیوں سے چند قطرے پانی مار کر کے لے کر کے چلے آئے. اتنا جب کہنا تھا, حضرت عباس لمبردار اسی جگہ پر تھے. عباس لمبردار نے کہا کہ زینب لاؤ کہاں پہ مشکیزہ ہے, زینب جہاں پہ مشکیزہ ہے لاؤ. زینب پہ مشکیزہ لاتی ہے. حضرت عباس لمبردار کو وہ مشکیزہ دے دیا جاتا ہے. عباس لمبردار گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں. دشمنوں کے لشکروں کو چیرتا ہوا, پھاڑتا ہوا وہ حضرت عباس لمبردار نہر فرات کے قریب گھوڑے کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں. جیسے ہی نہر فرات کے قریب جو ہے پہنچ گئے حضرت عباس لمبردار, ساتھ میں ایک مشکیزہ ہے, گھوڑے سے اتر گئے. اترنے کے بعد حضرت عباس لمبردار نے مشکیزے کو پانی میں جو ہے بھر لیا, پانی سے مشکیزے کو بھرا. بھرنے کے بعد جو ہے حضرت عباس لمبردار نے ایک چلو پانی اٹھایا, پینا چاہا, لیکن حضرت عباس لمبردار کو خیمے والوں کی پیاس یاد آ گئی. 6 مہینے کے بچے کے تڑپتے ہوئے وہ جو ہے پیاس کی شدت یاد آ گئی. جو ہے امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ کی پیاس آ گئی. حضرت عباس لمبردار نے چلو کا پانی پھینک دیا نہر فرات میں, اور وہ مشکیزہ لیا. لینے کے بعد پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے. گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد جو ہے ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے, ایک ہاتھ میں جو ہے تلوار حیدری ہے, ایک ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں. حضرت عباس گھوڑے پر چڑھ کر کے آگے بڑھتے رہے. تو کسی لشکروں میں جو بھی سپاہی آتا اس کے سر تن سے جدا ہوتا ہوا نظر آتا. حضرت عباس لمبردار کسی لشکروں کو صفایا کرتے ہوئے نظر آتے. یہاں تک کہ جو بھی آتا وہ قتل کر دیا جاتا. عباس لمبردار کے گردن کے تلوار کے بار سے کوئی خالی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ جب یہ جو ہے دیور دیکھا حضرت عباس لمبردار کا لوگوں نے, تو یزیدی خیموں میں یہ آواز پھیل گئی کہ یزیدیوں نے مشورہ کیا. میں ایک زبان ہو کر کے سارے لوگوں نے مشورہ کیا کہ چہار جانب سے عباس لمبردار کو گھیر لو اور ان کے جو ہے سر کو تن سے جدا کر دو. اگر تم انہیں نہیں قتل کرو گے اور یہ مشکیزے کا پانی اگر خیمے کے اندر حسین کے خیمے میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ جنگ جتنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ جنگ کا معارضہ سر کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. جہاں جانب سے گھیر لیا گیا, اس کے باوجود حضرت عباس لمبردار کے ہاتھ میں جو ہے ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے, دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے. یہاں تک کہ یزیدیوں کی جانب سے تلوار کا وار آتا ہے, جو ہے کسی جو ہے کاندھے پر تار آتا ہے. عباس لمبردار کا جو ہے یہ بازو کٹ جاتا ہے. جیسے ہی بازو کٹ گیا عباس لمبردار نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا. پانی کا مشکیزہ زمین پہ گرنے نہ دیا, پانی کا مشکیزہ زمین پہ گرنے نہ دیا. عباس لمبردار لڑتے رہے, خیمے کی جانب آگے بڑھتے رہے. خیمے کے اندر سے فاطمہ بنت رسول کی بیٹی حضرت زینب بھی دیکھتی رہی, امام حسین بھی دیکھتے رہے. 6 مہینے کا ننھا بچہ علی اصغر جو ہے زینب کے گود میں ہے, اور زینب دیکھتی رہی کہ عباس لمبردار مشکیزے میں پانی لے کر کے آ رہے ہیں. اسی بیچ میں دوسرا وار آتا ہے تلوار کا, دوسرا بازو بھی حضرت عباس لمبردار کا کٹ جاتا ہے. جیسے ہی دوسرا بازو کٹنا تھا عباس لمبردار نے مشکیزے کو جو ہے اپنے طاقت سے دبا لیا. دبانے کے بعد بھی جو ہے حضرت محترم دبانے کے بعد بھی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے. یہاں تک کہ دشمنوں کی جانب سے ایک تیر آتا ہے, اور آنے کے بعد مشکیزے پر جیسے ہی لگتا ہے کربلا کی وہ سرزمین مشکیزے کا سارا پانی پی جاتے ہوئے نظر آتی ہے, پیتی ہوئی نظر آتی ہے. جب مشکیزے کا سارا پانی جو ہے زمین کے اندر گر جاتا, زمین کے اوپر گرتا ہے, وہ کربلا کی زمین جب سارا پانی وہ پی جاتی ہے, ایسی صورت میں حضرت عباس لمبردار رضی اللہ تعالی عنہ علیہ اجمعین خیمے کی جانب دیکھتے ہیں اور دل ہی دل میں کہتے ہیں زینب میں جو ہے تیرے بیٹے جو ہے اصغر کے لیے پانی کا چند قطرہ خیمے کے اندر میں پہنچا نہ سکا. عباس لمبردار زخموں سے نڈھال ہو جاتے ہیں, چور ہو جاتے ہیں, بالآخر گھوڑے سے جو ہے زخموں کے مارے نیچے اتر جاتے ہیں. حضرت عباس لمبردار کو شہید کر دیا جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا خیمے سے نکلنے کے بعد عباس لمبردار کا لاشا پھر اپنے کاندھے میں لیا, لینے کے بعد لا کر کے خیمے کے اندر لٹا دیا, خیمے کے اندر لٹا دیا. حضرت محترم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہی کام کرتے رہے. لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی اصغر
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 महीने का जो बच्चा था, इस वजह से वो नहीं रो रहा था कि वो प्यासा था, बल्कि जो है तारीख ये बताती है, बयान करते हैं कि आम तौर पर जो है अली असगर इस वजह से रो रहे थे, अली असगर देख रहे थे कि जो है मेरा भाई भी शहीद हो चुका है, मेरे जो है घरवाले वाले शहीद हो चुके हैं, लिहाजा हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकीनन जामे शहादत पीने के लिए रो रहे थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अली असगर को लेते हैं और लेने के बाद मैदान करबला में पहुंचते हैं। मैदान करबला में पहुंचने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने एक आवाज लगाई, कहा कि ऐ यजीदियों सुनो, तुमने हमारे लिए पानी जो है बंद कर दिया, खेमे के अंदर जो है पहरा लगा दिया है, लेकिन ये 6 महीने का ये बच्चा है, यकीनन अगर पानी का चंद कतरा अगर मिल जाता है तो कल मैदान क़यामत में नाना जान की बारगाह में हम तेरे लिए जो है सिफारिश कर सकते हैं, तेरे लिए जो है सिफारिश कर सकते हैं। लिहाजा ये चंद कतरे पानी अगर आज तुम दे देते हो। हजरत मोहतरम पानी क्या दिया गुफा वालों ने, पानी क्या दिया यजीदी लश्कर वालों ने। एक तीर आया, आने के बाद जो है हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो है हल्क में लगा, हल्क में लग करके इमाम हुसैन के जो है बाजू में पेवस्त हो गया। जैसे ही वो बाजू में पेवस्त हो गया, हजरत इमाम हुसैन बैठ गए। अली असगर 6 महीने के बच्चों को लेकर के और अब की बारगाह में अर्ज किए, ऐ परवरदिगारे आलम, तेरी रज़ा के खातिर मेरा 6 महीने का बच्चा तेरी बारगाह में कुर्बान है, तेरी रज़ा के लिए जो है तेरी रज़ा के खातिर मैंने इसे कुर्बान कर दिया है। लिहाजा प्यारे मैं बताना ये चाहता, इमाम हुसैन ने क्यों ये सारी कुर्बानियां दी, इस वजह से ये सारी कुर्बानियां दी कि मज़हब इस्लाम को दागदार की जाने की कोशिश की जा रही थी, मस्जिदों के एहतराम को पामाल करने की कोशिशें की जा रही थी, कुरान की बेहुरमती हो रही थी, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लिहाजा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जामे शहादत दे करके करबला में अपने खेमे वालों को जामे शहादत दिला करके ये साबित कर दिया कि ऐ यजीदियों सुनो, ये हुसैन का हाथ तुम्हारे हाथ में तो जा नहीं सकता है, तुम ये सर मेरा ले सकते हो, लेकिन हाथ में तेरे हाथ में दे नहीं सकता हो, हाथ में तेरे हाथ में दे नहीं सकता। लिहाजा प्यारे बस ये मैं बताते हुए गुजरना चाहता हूँ, शुहदाए करबला की याद मनाने वालों, शहीदाने वफा की याद मनाने वालों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ा, मदीना छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, फातिमा के दर को छोड़ा, रसूल का रोजा छोड़ा। इमाम हुसैन अगर चाहते तो यकीनन कहीं भी तख्त शाही मिल सकती थी, बादशाहत कर सकते थे, लेकिन इमाम हुसैन अगर बादशाह बन करके बैठते क्योंकि उन्हें ऑफर दिया जा रहा था, इमाम हुसैन अगर बादशाह बन करके बैठते तो क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक फासिक की इत्तबा करना जायज हो जाता, एक फासिक की पैरवी करना जायज हो जाता, एक शराबी की जो है इत्तबा करना जायज हो जाता, इक्तदा करना जायज हो जाता। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला की सरजमीन पर ये पैगाम दे दिया, आखिरी वक्त में ये पैगाम दे दिया, ऐ यजीदियों सुनो, ऐ यजीदियों सुनो, मैं अपना सर तो दे सकता हूँ, लेकिन ये हाथ नहीं दे सकता जिस हाथ को मेरे नाना ने चूमा है, जिस हाथ को मेरे जो है नाना जान ने बार बार चूमा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लिहाजा शुहदाए करबला से आप मोहब्बत करें, याद हुसैन भी आप मनाएं, लेकिन हुसैन के किरदार के मुताबिक चलने की कोशिश करें, हुसैन के गुफ्तार के मुताबिक चलने की कोशिश करें, हुसैन के उसवे हसना के मुताबिक हसना के मुताबिक जो है चलने की कोशिश करें। यकीनन अगर इस तरीके से हम यहाँ पे चलते हैं तो यकीनन जो है हम यहाँ भी कामयाब होंगे और मैदान क़यामत में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला कर दिया जाए। अच्छा 1 घंटा हो गया, हाँ खत्म कर दीजिए। दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु सलाम दाइम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा प्यारे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी चीजों को कुर्बान कर दिया सिर्फ रब को राजी करने के लिए। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आ गई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आए, इमाम हुसैन मैदान करबला में निकलने की तैयारी जैसे ही करने लगे, उनका एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बुखार की हालत में बिस्तर पे बुखार की हालत में तड़प रहे थे, वो करा रहे थे। जैसे ही देखा कि अब जो है बाबा जान भी करबला के मैदान में जा रहे हैं, बाबा जान भी जा रहे हैं, वो उठने की कोशिश
कोशिश की, उन्होंने उठने की कोशिश की। आवाज लगाया बाबा जान आप बाद में जाएंगे, पहले आप मुझे जाने की इजाजत दे दें, अब पहले मुझे जाने की इजाजत दे दें। इमाम हुसैन ने कहा बेटा अब अगर तुम चला जाता है तो फिर जो है इन जो है बच्चियों को, इन जो है ख़वातीन इस्लाम को मदीना शरीफ कौन लेकर के जाएगा। लिहाजा है बेटा तुझे जो है खेमे वालों की क़यादत करनी है, तुझे जो है तुझे जो है खेमे वालों की क़यादत करनी है, तुझे इनको जो है मदीना शरीफ लेकर के फिर से जाना है। हजरत इमाम हुसैन ने समझाया अपने बेटे को। उसके बाद इमाम हुसैन यकीनन जो है वो अमामा बांधते हैं, बांधने के बाद जो है वो तलवार लेते हैं, वो जुल्फ़िकार लेते हैं। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। बिलाखिर घोड़े पर इमाम हुसैन जो है बैठ गए। बैठने के बाद हजरत इमाम हुसैन जैसे ही निकलने की तैयारी करने लगे, घोड़े को इशारा करने लगे, ऐ घोड़ा चल मैदान करबला के जाने। जिस मैदान में अब्बास भी गए दोबारा जो है जिंदा जाहिरन वापस न आए, जिसमें जो है मेरे बेटे भी गए वापस जो है जिंदा जो है जाहिरन वापस न आए। लिहाजा ऐ घोड़ा अब चल जो है मुझे लेकर के चल, अब जो है मेरी बारी है। इमाम हुसैन घोड़े को एड़ लगाते जाते, घोड़ा आगे बढ़ता नहीं। जैसे ही घोड़े को इशारा करते घोड़ा सर को नीचे की जानिब झुका दिया करता। इमाम हुसैन समझ नहीं पाने लगे वजह क्या है कि ये घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा है, लेकिन घोड़े ने जब अपने सर को नीचे की जानिब किया है, जैसे ही किया इमाम हुसैन ने भी नीचे की जानिब देखा तो क्या देखा कि हजरत इमाम हुसैन की बेटी 6 या 7 साल की बेटी हजरत सकीना घोड़े के पैर को जो है अपने बाहों में लपेट करके रखी हुई है। घोड़े को कह रही है ऐ घोड़ा करबला की सरजमीन पे जो भी गया वापस न आया, लिहाजा मेरे मामा चाल भी जा रहे हैं, तुम इसे लेकर के करबला के मैदान में मत जाओ। वो घोड़ा कह रहा था ऐ हुसैन आप मेरे ऊपर सवार हैं, अब मैं आपकी बात को मानो या आपकी बेटी की बात को मानो या आपकी जो है चहेती की बात को मानो। हजरत इमाम हुसैन घोड़े से उतर गए और उतरने के बाद अपनी बेटी को गोद में लिया। 6-7 साल की बच्ची को गोद में लिए कहा बेटी अब तुम मुझे खुशी खुशी जो है विदा करो, खुशी खुशी तुम मुझे अलविदा कहो। इमाम हुसैन की बेटी ने कहा बाबा जान अब आप अगर जो है चले जा रहे हैं रात को मैं किसके साथ सोया करूंगी, जब मुझे नींद नहीं आया करती तो मैं आपके सीने पे सर रख करके सोया करते थे। बाबा जान मैं किसके सर पे सर रख करके सोऊंगी। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत ज़ैनब अपने बहन को बुलाया और बुलाने के बाद कहा ज़ैनब अब ये जो है 6-7 साल की बेटी सकीना अब ये तेरे हवाले है, अब इसकी किफालत तेरे हवाले है, अब इसकी जो है बाज पुष्ट जो है तेरे हवाले है। हजरत ज़ैनब ने हजरत सकीना को लिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला की जानिब निकलने लगे। खेमे से जो है हजरत ज़ैनब भी देखने लगे। हजरत इमाम हुसैन की जो है बीवी ज़ौजे मोहतरमा शहर बानो भी घूम करके देखने लगे। मेरा शोहर नामदार आखिरी बार जा रहा है और ये आखिरी के दीदार है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वह हजरत ज़ैनब भी बहुत मोहब्बत की निगाह से देखने लगे। इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंच गए। मैदान करबला में पहुंचने के बाद जो है यजीदियों के साथ में मुकाबला होता है, तलवारें चलती है, भाले चलते हैं, बर्शियां चलती है। फिर हजरत इमाम हुसैन 72 तख्त बजाकर जमीन पर जब चले आते हैं उसी वक्त जो है यकीनन अज़ान की आवाज सुनाई देती है। फिर जो है नमाज का वक्त चला आता है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पर जब ये चले आए तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा ऐ यजीदियो तूने मेरा खानदान तो लूट लिया, तूने जो है अब मेरे गर्दन पे ये जो है तलवार चलाने वाले हो, लेकिन अज़ान हो चुकी है, नमाज का वक्त हो चुका है, तुम मुझे एक सजदा कर लेने दो, एक सजदा रब की बारगाह में कर लेने दो। मैं तुझे पूछना चाहता हूँ ऐ प्यारे गुलाम हुसैन का नारा लगाने वाले, हुसैन की मोहब्बत में याद हुसैन सजाने वाले, आज यकीनन जो है महफल के ऊपर, आज जो है कालिन के ऊपर, आज जो है टाइल से ऊपर आज हम जो है नमाज नहीं अदा कर रहे हैं, आज पंखे और एसी के नीचे हम नमाज अदा नहीं कर रहे हैं। करबला की वो सरजमीन है जहाँ पे शिद्दत की धूप है, जो जमीन खून से रंगीन हो चुकी है, ऐसी सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खून से वजू किया और वजू करने के बाद रब की बारगाह में वो सजदा अदा किया। सजदा करते हुए तो कायनात ने देखा है, लेकिन सर उठाते हुए आज तक किसी इमाम हुसैन को सर उठाते हुए आज तक
ने नहीं देखा। लिहाजा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो है सीने पर शिमर लाइन मरदूद चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद जो है नमाज सजदे की हालत में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लिहाजा प्यारे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीना से निकले तो भी कुरान साथ रहा। नमाज जो है नमाज की जो है पाबंदी करते रहे, नमाज की पाबंदी करते रहे, नबी के तरीके पर चलते रहे। वहां से जब मक्का आए उस वक्त भी ये सारी चीजें चलती रही, यहाँ तक कि करबला के मैदान में भी कोई जो है ये पेश नहीं कर सकता कि इमाम हुसैन ने एक वक्त की नमाज कज़ा की हो। लिहाजा प्यारे अगर हम अपनी जिंदगी को कामयाब करना चाहते हैं और हुसैन से सही मानों में अगर मोहब्बत करना चाहते हैं, मोहब्बत का सबूत अगर पेश करना चाहते हैं तो वक्त पर नमाज अदा करने की कोशिश करें और नमाज पढ़ने के बाद उसी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वसीला लेकर के रब की बारगाह में दुआ करें। यकीनन जब सर झुकाने के बाद जब हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का वसीला लेकर के हम और आप दुआ करेंगे तो परवरदिगार आलम इमाम हुसैन के वसीले से, अहले बैत के धार के वसीले से हमारी नमाज को भी कबूल फरमाएगा, हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाएगा। ये किस्सा लतीफ मदीना तमाम है जो कुछ बयां हुआ। आगाज़ बात था अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैह। शेर के खूबे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हुआ गुलशन तेरा आबाद रहे। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदार नादात दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद यजीद डूब गया, शाम के अंधेरे में हुसैन आज भी घर घर दिखाई देते हैं। आइए खड़े होकर सलातो सलाम